Good evening, students. Today we are going to start the case studies based on the topic leadership style, element of directing chapter. So now first case study is Pramod was a supervisor at Annapurna Atta factory. Okay. The factory was producing 200 quintals of atta every day. His job was to make sure that the work went on smoothly and there was no interruption in the production. He was a good leader who would give orders only after consulting his subordinate. The main point is here, after consulting his subordinate, this is the main point beta, and work out the policies with the acceptance of the group. आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द लीडरशिप स्टाइल, है ना. ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी वीडियो भेज चुका हूँ उसकी, तीनों लीडरशिप स्टाइल की, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और लेसस फेयर की. तो बेटे सीधी सी बात क्या है यहाँ पर, ही इज टेकिंग डिसीजन आफ्टर कंसल्टिंग हिज सबऑर्डिनेट्स एंड वर्क आउट द पॉलिसीज विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्रुप. इट मीन्स जहाँ पर भी ये बात आएगी, कौन सा लीडरशिप स्टाइल होगा बेटे, जो कंसल्ट करने के बाद डिसीजन लेता है, जो अपनी ऑथोरिटीज़ को डेलीगेट करता है. Such type of leadership style is democratic style of leadership. Next is Umang is the managing director of Denver Limited. The company had established a good name for itself and had been doing well. It was known for timely completion of order. The production manager of Kanta was efficiently handling the processing of order and had a team of 14 motivated employees working under her. Everything was going on well. Unfortunately, she met with an accident. Okay. Umang knew that in the absence of Miss Kanta, the company may not be able to meet their deadlines. He also knew that not meeting the deadlines may lead to customer dissatisfaction with the risk of loss of business and goodwill. So he had a meeting with his employee in which accurate and speedy processing of orders was planned. Everybody agreed to work as team because the behavior of Umang Gupta was positive toward the employees of the organization. Hence, everyone put in extra time and efforts and the targets were met on time. Not only this, Umang visited Miss Kanta and advised her to take sufficient rest, identify and explain the diagram, है ना. लीडरशिप स्टाइल को बेटर एक्सप्लेन करना. यू नो दैट इट इज़ वेरी ईजी, है ना. क्या हो रही है बेटे, यहाँ सारे के सारे जो डिसीजन जो काम हो रहे हैं वो सबकी कंसल्टेशन से हो रहे हैं, सबके एग्रीमेंट से हो रहे हैं, है ना. सबके एग्रीमेंट से, सबके कंसल्टेशन से काम कर रहे हैं. इसका मतलब कौन सा लीडरशिप स्टाइल होगा बेटे, जहाँ पर ये सारी बात आएगी वहाँ पर लीडरशिप स्टाइल आ जाएगा बेटे हमारा डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल हो जाएगा. डायग्राम कैसे बनाया जाएगा बेटे, डायग्राम को कहा है इतने बनाने के लिए. सपोज ये ए है, लीडर है, ठीक बेटे. ये बी हो गया बेटे हमारा, ये सी है, सपोज कर लीजिए, ये डी है, ये ए ई है, ई हो जाएगा बेटे. ये इसका डायग्राम हो जाएगा लीडरशिप स्टाइल का बेटे. सेंटर्ड और पार्टिसिपेटिव और ग्रुप सेंटर्ड हो रहा है बेटे ये, तो दैट इज डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल. ठीक. नेक्स्ट इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज ऑलवेज फील दैट दे आर अंडर enormous unnecessary stress. As Mr. Latour, the manager does not provide any information about future plan but simply instruct them what to do. बस ये करो भैया. He also does not listen to any of the suggestions given by the subordinates. Identify the leadership style. बेटा आपको तो समझ में आ गया होगा कौन सा leadership style है. He does not, मेन बात क्या है बेटा इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसके अंदर आया, he does not listen to any of suggestion given by the. ठीक, कोई सजेशन को नहीं सुनता. तो जिसमें कोई सजेशन नहीं सुने जाते, दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. तो यहाँ पर कौन सा बना बेटा हमारा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बन जाएगा बेटा हमारा इसका. ठीक. नाउ द नेक्स्ट इज
नेक्स्ट आएगा बेटे हमारा मिस उमंग, प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ क्रिएटिव कॉन्सेप्ट, डिस्कस विद हर स्टाफ अबाउट द न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर. All the staff members unanimously agree that they all will work together to do overtime to complete the order. कंप्लीट कर रहे हैं ऑर्डर टाइम पर, सारे मिलजुल कर काम कर रहे हैं. तो जहाँ पर सारे मिलजुल कर काम करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. कौन सा लीडरशिप स्टाइल मिस उमंग फॉलो कर रही है बेटे? दैट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. आयुषी वर्कड इन ए सेल इन ए कॉल सेंटर. हर टीम मैनेजर did not wish to be contradicted and gave reward depending on the result. State one benefit of the style of leadership being followed by Ayushi. कौन सा हो रहा बेटे? कौन सी बात है इसमें? मेन जो आंसर पता लग रहा है हमें कहाँ से पता लग रहा है? सिंपल पता लग रहा है बेटे हमें. कौन से वाले से पता लग रहा है बेटे? हर टीम मैनेजर did not wish to be contradicted and gave her reward depending on the result. कौन सी बात आएगी बेटे? दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. और इस लीडरशिप स्टाइल का एडवांटेज क्या होगा बेटे? दिस लीडरशिप स्टाइल इज इफेक्टिव इन गेटिंग प्रोडक्टिविटी इन मेनी सिचुएशन और क्विक डिसीजन मे बी टेकन बिकॉज मैनेजर हैज़ नॉट टू कंसल्ट विद एनी वन. किसे कंसल्ट ही नहीं करना, तो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है बेटे. नंबर 6 है ध्रुव इज वर्किंग एज ए सुपरवाइजर with Neer Purifier Limited, which is producing water purifiers. The target of the company is to produce 200 water purifiers every day. His job is to make sure that work goes on smoothly and there is no interruption in production. They achieve this. He always gives orders and insists that they are obeyed. हमेशा ऑर्डर देता है, इंसिस्ट करता है कि उसके ऑर्डर को माना जाए. He believed that reward और punishment both can be given depending upon the performance. जहाँ पर रिवार्ड और पनिशमेंट, अच्छे काम के लिए रिवार्ड दिया जाए, बुरे काम के लिए पनिशमेंट दिया जाए, दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. तो कौन सा स्टाइल होगा बेटे? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल हो जाएगा. गोपाल, ए मैनेजर इन ए कंपनी, सेट्स द टारगेट ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स विदाउट डिस्कसिंग इट विद देम. कोई डिस्कस करे वो सेट कर दिया उन टारगेट. ही फर्मली tells them that if the task is not completed within time, अगर टाइम पर काम ना करा आपने, then strict actions must be taken. एक्शन लेने की बात चल रही है, डिफॉल्ट के खिलाफ टाइम की बात चल रही है. कौन सा हो जाएगा बेटे? दैट इज ऑल्सो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. नेक्स्ट नंबर 8, श्याम सुंदर, ए मैनेजर इन ए फार्मास्यूटिकल कंपनी, इज रियली अप्रिशिएटिव ऑफ फ्रेश आइडियाज गिवन बाय हिज सबऑर्डिनेट्स. क्या कर रहा है बेटे? अप्रिशिएट कर रहा है फ्रेश आइडियाज़ की जो सबऑर्डिनेट देते हैं. तो आइडियाज़ किस में देते हैं और कौन देता है? डेमोक्रेटिक वाला देता है. ही फ्रेम्स पॉलिसीज ओनली आफ्टर कंसल्टेशन के बाद चल रही है बात, कंसल्टेशन के बाद चल रही है. दैट इज डेमोक्रेटिक बेटे. कौन सा होगा? डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल हो जाएगा. लास्ट है मनमोहन, ए मैनेजर इन ए केमिकल कंपनी, हैज़ गिवन कंप्लीट फ्रीडम टू हिज सबऑर्डिनेट्स. उन्होंने कंप्लीट फ्रीडम दी सबऑर्डिनेट्स को, है ना. He avoids the use of power and depends largely upon the group to establish its own goals and work out its own problem. जब सब कुछ दूसरों पे दे दिया जाता है, सबऑर्डिनेट पर सौंप देता है मैनेजमेंट, दैट लीडरशिप स्टाइल इज लेस स्फेयर लीडरशिप स्टाइल. तो कौन सा स्टाइल हुआ बेटे? लेस स्फेयर लीडरशिप स्टाइल हुआ. आई होप समझ में आया आपको. इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो वी विल टेक द न्यू टॉपिक. कल नया टॉपिक लेंगे. तब तक डेमोक्रेटिक में क्या होता है? मिलजुल कर काम होता है, कंसल्टेशन होती है, कंसल्टेशन के बाद वो डिसीजन लेता है, वो है ना. ही यूजेस द वर्ड वी, नॉट वर्ड आई. वी वर्ड यूज़ करता है, आई वर्ड यूज़ नहीं करता. अपनी पावर या अथॉरिटी को डेलीगेट करता है, सबका केयर करता है. ऑटोक्रेटिक में तो उल्टा है. ऑटोक्रेटिक में वो अपनी पावर को डेलीगेट नहीं करता, अपनी पावर दूसरों को डेलीगेट नहीं करता. वो ये मान के चलता है कि लोग जो है पैसे के लिए काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, ये मान के चलता है. वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल था. ठीक है. वो आई वर्ड यूज़ करता, वी वर्ड यूज़ नहीं करता. लोगों को कोर्शन यूज़ करता है, वो लोगों को अच्छा काम करने पर रिवार्ड देता, बुरा काम करने पर पनिशमेंट देता है. लेस फेयर या फेयर इन लीडरशिप स्टाइल में क्या है? उसमें जब बहुत ही क्वालिफाइड, टैलेंटेड और एक्सपर्ट होते हैं सबऑर्डिनेट्स, तो वो सारी अथॉरिटी उन्हें दे देता है कि भैया अपना आप काम करो.
उनसे गोल डिसाइड करवा देता है, सब कुछ उनसे करवा देता है, उन पर डिपेंडेंट हो जाता है, एंड ही बिकम्स ओनली ए कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर द आउटसाइडर्स. दैट इज लेस स्पीयर लीडरशिप स्टाइल. So I hope it is clear to you. In the next video we will take the next question.